सोसाइटी में बोलते हैं अरे जल्दी बच्चा कर लो नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी, 30 के बाद में तुम्हारी फर्टिलिटी कम हो जाएगी एंड 30 के बाद बच्चे कंसीव करने में प्रॉब्लम हो जाएगी. सो व्हाट इज योर टेक ऑन कि फर्टिलिटी कैसे डिक्रीज होती है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्ली 30s फर्टिलिटी एंड द लेट 30s फर्टिलिटी? See, the biological reality is female fertility declines with age. ये सच है ना? Your fertility will decline once you start aging. But there's a difference between early 30s and the late 30s, I would say. When you cross 30, your eggs start to decline. For the early 30s, it's not very sudden or faster rate. It is a very gradual process. Biologically speaking, your early 30s is also a good window for conception. Okay. But once you cross 35, the fertility starts to decline more sharply. Also, जो आपके eggs है उनमें chromosomal abnormalities होने लगती हैं, जिसकी वजह से miscarriages and baby में genetic defects बहुत ज्यादा होता है after you turn 35. क्या women को जैसे infectious disease होती है, रूबेला, STI, इनके भी टेस्ट कराने चाहिए? As a pediatrician, I know कि अगर किसी मदर को रूबेला है तो transferring into baby higher chances होता है. So rubella is important because I told you this can cause serious birth defects in the baby. Welcome Dr. Chandni to this episode of Parenting Prescription, and to all the listeners, Dr. Chandni is obs gynecologist and who is working as associate professor in MGMMC, and also she is creating amazing content for women and mothers on her page Busy Birthing, so please check out that page also. So Dr. Chandni, it's pleasure to have you on this show. Thank you, Dr. Sumitra. I am really privileged कि आपने मुझे, you've given me this chance to speak on this topic, pregnancy after 30. बहुत common हो गया है आजकल, and I'm very glad that you thought me to be a part of this. Yeah. Yes. So today's topic, जैसे डॉक्टर चांदनी ने बोला कि हम आज डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी आफ्टर 30, क्योंकि आई थिंक मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड मी ऑल्सो प्लान प्रेगनेंसी आफ्टर 30 बिकॉज बिफोर 30 वी आर बिजी बिल्डिंग करियर एंड पर्सनल लाइफ जो हमारी होती है, वी वांट टू एंजॉय एज अ सिंगल लाइफ और मे बी मैरिड लाइफ, बट आफ्टर 30 ही हम लोग प्लान करते हैं मोस्टली. सो डॉक्टर चांदनी, आपके भी डे टू डे बेसिस में ओपीडी में मदर्स आती हैं, सो अकॉर्डिंग टू यू क्या क्या रीजंस होते हैं, पर्सनल, फाइनेंशियल, क्या रीजन होते हैं जो मदर्स अभी 30 टुवर्ड्स 30 इवन 35 40s में भी जा रही है मदर्स टू प्लान द प्रेगनेंसी? Yeah. So as I've said, ये बहुत common हो गया है. I myself conceived after 30. एंड इसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि करियर प्रायोरिटाइजेशन आजकल बहुत ज्यादा हो गया है विमेन के अंदर. वी आर परस्यूइंग हायर एजुकेशन. हम चाहते हैं कि टू एस्टैब्लिश अ वेल सेटल्ड स्टेबल करियर बिफोर प्लंजिंग इनटू दैट जर्नी ऑफ मदरहुड, है ना. एंड सेकेंड आई वुड से कि सोसाइटल नॉर्म्स भी बहुत आजकल इजी हो रही है एज प्रीवियसली जितनी नहीं थी. अब थोड़ा मैरिज और प्रेगनेंसी को बहुत अर्जेंट माइलस्टोन्स नहीं समझा जाता है. तो इस वजह से ये भी एक रीजन है कि women are not going into this so quickly, है ना. एंड थर्ड इज अब बहुत ज्यादा women को better access है to reproductive health. These days women know about birth control, जो बहुत पहले ऐसा commonly इतना सीन नहीं था. Now they have greater access to birth control, so they can effectively decide if and when they want pregnancy. And also बहुत सारे options आजकल available है, like egg freezing है, IVF है, जो बहुत flexible कर चुका है आजकल women के लिए, to postpone their childbirth. And also you mentioned as we want to enjoy our personal life as well. Aajkal women and as a couple, I would say people want to enjoy their marriage also before going into this parenthood era, because life actually changes after you become a once you are parent is always a parent. Yeah, it can never go back to how it was Yes. earlier. That spontaneity is always it's gone totally. So you should actually, that is also one reason that women are postponing their childbirth after 30, because they also want to, even if they get married early, they want to enjoy their marriage before and then plunge into that motherhood phase. So these are a few reasons I would say that women are postponing. Right. So as a women and as a millennial generation, we are planning the pregnancy after 30s. But
सोसाइटी में बोलते हैं अरे जल्दी बच्चा कर लो नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी, 30 के बाद में तुम्हारी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, एंड 30 के बाद बच्चे कंसीव करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। सो व्हाट इज योर टेक ऑन कि फर्टिलिटी कैसे डिक्रीज होती है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्ली 30s फर्टिलिटी एंड द लेट 30s फर्टिलिटी? See, the biological reality is female fertility declines with age. ये सच है ना? Your fertility will decline once you start aging. But there's a difference between early 30s and the late 30s, I would say. When you cross 30, your eggs start to decline. For the early 30s, it's not very sudden or faster rate. It is a very gradual process. Biologically speaking, your early 30s is also a good window for conception. Okay. But once you cross 35, the fertility starts to decline more sharply. थोड़ा फास्ट हो जाता है, आपके जो एग्स होते हैं वो और ज्यादा फास्ट डिक्लाइन करते हैं। ऑल्सो जो आपके एग्स है उनमें क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज होने लगती हैं, जिसकी वजह से मिसकैरेजेस एंड बेबी में जेनेटिक डिफेक्ट्स बहुत ज्यादा होता है आफ्टर यू टर्न 35, है ना। सो दीज आर अ फ्यू रीजंस कि बायोलॉजिकली वी वुड से, if we talk about, if as a gynec I'm saying biologically your 20s are the best time to get pregnant. But since we are talking about pregnancy after 30, early 30s is still a good window for conception. Most of the women are fertile. But after 35, the shift starts to decline. And then once, even if they conceive, we'll see if we mostly see that once the, with advancing age, the woman, even if she gets pregnant, बहुत सारे complications होते हैं। Gestational diabetes mellitus हमें बहुत ज़्यादा दिखती है, hypertensive disorders in pregnancy हमें बहुत दिखती है, pre-eclampsia है ना, preterm births बहुत common हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ eggs ही decline करिए, ovarian reserve ही कम हो रहा है after 35, आपकी chromosomal abnormalities भी बढ़ रही है। एंड अगर आप कंसीव कर भी जाते हो तो आपके जो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं। तो बायोलॉजिकली स्पीकिंग यस, फर्टिलिटी तो रिड्यूस होती है, बट वी हैव टू बी माइंडफुल, वी हैव टू plan our pregnancy in a way that we have a healthy fetus and a healthy pregnancy. Yes. So I'll tell you my story, why I did conceive my first child, and we were thinking कि after marriage we will not have a child for next 3-4 years. Okay, we'll enjoy the life, couple life and married life. But I was doing duty in the ICU for a whole month, and I was like getting kids who are Down syndrome, who are like syndromic babies. And when I was asking mother, of course as a pediatrician I know कि ये factors होते हैं, मतलब ये syndromes बाद में बहुत ज़्यादा higher chances होते हैं if you're 35 and after 35 the chances will increase only, it will not decrease the syndromic to have a syndromic baby. But for whole month I was like getting those kids sick, and the Down syndrome baby, Patau syndrome baby, and different kind of syndromic baby. So I said, one day I came to my husband, let's plan. We want to have one baby. Let's have, because I don't want to like syndromic baby. I'm not like saying that if somebody is having, it's okay. But that is the thing that okay, after 30 you will have higher chances of having a syndromic baby, especially the mother's age determines these factors actually. So as you said rightly, that fertility is one issue, and the syndromes like child syndromes are also another issue. But after 30 there are some positive point if we take financial stability, emotional maturity. So according to you, what are the benefits of having kids after 35? See, I'll tell you my story. I also conceived after 30, and as a gynec तो मेरे लिए ये रोज का काम है. I'm very mindful about these markers and everything to be done in pregnancy, because when you know a lot, आपको डर भी बहुत ज्यादा लगता है. वो people ऐसे लोग सोचते हैं, जब लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे ये तो डॉक्टर है, इसे ज्यादा पता है. नहीं, हमें ज्यादा पता है, इससे हमें डर भी बहुत ज्यादा लगता है. हाँ, तो हमें see, one side I have a career to also form, and that is also very important because I've worked like since both of us, हमने पहले MBBS किया, MD किया, इतना कुछ किया, and हम उसे नहीं छोड़ सकते. And it's not easy to raise a child with your career. It's not easy, I would say. People are doing it, but it's not easy. So
I had some milestones to achieve. After that, I was okay with having a kid, right? But yes, behind my, Hmm. head, this was constantly going on ki, अरे यार, इतने सारे. So when I was pregnant, I would say I was the most, आई वुड से बहुत पैनिक किया है मैंने, लाइक एज अ बहुत ही पैनिकी पेशेंट रही हूँ मैं, है ना, लाइक I used to get myself checked so many times because you know a lot, so you're scared a lot. So ये एक reason है. Yes, But yes. I would also say that after 30 there are advantages also. Why? Because Hmm. emotional maturity, once you cross 30, you have a stronger self awareness है, आपकी patience भी Yes, बहुत बढ़ जाती है. Now that yes, I am a parent, I know how parenting is difficult, है ना. एक बच्चे को रेज करना इस दुनिया का सबसे difficult job है. And yes, yes. in this era, I would say, like nowadays, we are so much mindful about हमारे बच्चे का mental well-being क्या है. Hmm. So if we Hmm. cannot regulate our own emotions, है ना, Hmm. it's not going to benefit the child at all. वो पहले Yes, की generation and अभी की generation की parenting is totally, vast difference है. तो yes. हमें, I feel that after 30 that emotional maturity development is better, है ना, Hmm. and to handle such situations in parenting also becomes better, है ना. Hmm. Also आप जब थोड़ा क्रॉस कर जाते हो, you 30, and then you have this, you do not get influenced by this outside pressure, है ना, बहुत ज्यादा pressure और judgment को. When you're Hmm. younger, आपको लगता है, लोगों को भी लगता है कि आपको बहुत ज्यादा एडवाइस दे सकते हैं, है ना, एंड आप भी बहुत फिनिकी हो जाते हो, एंड आप भी बहुत डरते हो. You take everybody's Hmm. advice and get, carried away with that. But once you're over 30 and you have achieved some kind of milestone in your life, you are well read also. आजकल इतना accessibility हो गया है सोशल मीडिया का, mothers know what they're doing, है ना. तो Hmm. वो एक्सटर्नल जो प्रेशर और जजमेंट है, दैट रियली डजंट अफेक्ट यू. सो आई थिंक वी अप्रोच मदरहुड विद मोर कॉन्फिडेंस, है ना. एंड देन Hmm. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो ऑफ कोर्स इफ यू आर पोस्टपोनिंग योर प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ योर करियर, एस्टैब्लिशिंग अ करियर, Hmm. then you, if you are financially stable, you are going to provide a safe and secure home environment also, right? So Yes. I would say that pregnancy after 30 is a blend of wisdom, patience, है ना. But yes, as a gynec, I would also say that biological planning is very, very important. If you're planning Yes. to, postpone your pregnancy and want to have a pregnancy, healthy pregnancy and a healthy offspring, in your late 30s or your 30s, you should always visit a fertility specialist, a gynecologist. Baseline ही कराओ, but then get yourself checked always, so that, Yes. we do not, yeah, land up in some situations which is actually not beneficial for either a gynec nor a pediatrician. So, as you said, that financial and mental stability is very, very important. When we did plan our second child, my daughter is 9 months old now. So, apart from the financial and mental stability, we did some preconception checkup with help of our, of course, the gynecologist. So, what are the preconception medical tests, essential medical tests, जो हर women को करवाने हैं before planning the pregnancy? So yeah, like if we go by the books in our हाँ. practice, हम generally ये बात बोलते हैं कि if your age is more than 35 years, we will give you 6 months of regular unprotected intercourse आपको करना है. अगर उसके बाद भी आपको result नहीं मिल रहा है, then you need to see a gynec or a fertility specialist. And if your age is less than 35, 1 year of regular unprotected intercourse is the timeline. But these days women are more apprehensive, है ना, and वो चाहती हैं कि हमें identify करना है and address करना है कोई भी potential health concern तो नहीं है before we even start to plan. So we ideally, these days we are prescribing investigations in our practice. So some essential investigations to be done is, number one is complete blood count हम कराएंगे to rule out anemia या फिर कोई infections. BMI weight assessment करेंगे. बीपी चेक करेंगे कि चेक करना है कि अंडरलाइन कोई हाइपरटेंशन तो नहीं है. रेप्रोडक्टिव हार्मोन पैनल होता है जिसमें हम थायराइड प्रोफाइल कराते हैं, ब्लड शुगर, फास्टिंग, पीपी, HbA1c कराएंगे एंड प्रोलैक्टिन कराएंगे. LH-FSH ईस्ट्राडियोल करा सकते हैं डे 2 या डे 3 ऑफ मेंसेस पे अगर रेगुलर है साइकिल. देन AMH करा सकते हैं एंड AMH कैन बी डन एनी टाइम इन द साइकिल, है ना. देन यू कैन डू सीरम प्रोजेस्टेरॉन करा सकते हैं डे 21 में. दिस टेल्स यू कि आप ओव्यूलेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना. देन विटामिन B12, विटामिन डी करा सकते हो, विटामिन B12 करा सकते हो. एंड
थैलेसीमिया ट्रेट स्क्रीनिंग कराते हैं हम, एक बेसलाइन अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं टू सी या फिर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड टू सी एन एसिस, ओवरीज कैसा है, यूट्रस कैसा है, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, पॉलिप तो नहीं है ना। ये सारे कुछ टेस्ट एंड ऑफ कोर्स हस्बैंड का भी एक सेमेन एनालिसिस कर सकते हैं, जस्ट टू रूल आउट एनी काइंड ऑफ पैथोलॉजी बिफोर दे गो इनटू दिस. So these are a few tests that can be done, that should be done, if you're planning to conceive. These are very regular, common tests, and ideally anyone can get it done. Whoever is planning to, trying to ठीक है. conceive. तो अपार्ट फ्रॉम दिस रूटीन टेस्ट, क्या विमेन को जैसे इन्फेक्शियस डिजीज होती है, रूबेला, STI, इनके भी टेस्ट कराने चाहिए? बिकॉज एज अ पीडियाट्रिशियन आई नो कि अगर किसी मदर को रूबेला है तो ट्रांसफरिंग इनटू बेबी हायर चांसेस होता है. सो इनका भी टेस्ट कराना चाहिए क्या इनको? Yes, rubella is very very important, absolutely critical I would say. And इसकी टेस्ट इसलिए क्यों कराते हैं हम? IgM IgG कराते हैं, इसमें हम चेक करते हैं. IgM अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है पेशेंट को रीसेंट इन्फेक्शन है, एंड वो अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो उसको कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम हो सकता है ना, जिसमें बच्चा डेफ हो सकता है, डेफनेस हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है बच्चे में, है ना. एंड अगर IgG पॉजिटिव है, पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस, अगर IgG पॉजिटिव है मतलब आपको पास्ट में इन्फेक्शन हुआ था और अभी आप इम्यून हो चुके हो, एंड यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ वैक्सीन. बट अगर IgM और IgG दोनों ही नेगेटिव है and the patient wants to conceive in future, then we ideally advise rubella vaccine, क्योंकि patient immunized नहीं है तो हम उसे वैक्सीन देते हैं. वी से कि पहले 3 मंथ फॉलो करते थे, अब 1 मंथ फॉलो करते हैं कि नेक्स्ट 1 मंथ 2 मंथ आप कंसीव मत करना, उसके बाद यू कैन ट्राई टू कंसीव. सो रूबेला इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आई टोल्ड यू दिस कैन कॉज सीरियस बर्थ डिफेक्ट्स इन द बेबी, है ना. एंड सेकेंड HIV भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू रूल आउट, क्योंकि अगर द वुमन इज सफरिंग फ्रॉम HIV, शी कैन पास इट टू द बेबी इफ शी इज नॉट ऑन थेरेपी. देन हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, VDRL we do for syphilis. This syphilis is also seen to cause birth defects in the fetus and also stillbirth. तो हमें but ये actually treatable है. So ये सारे टेस्ट अगर हम करा लेंगे preconceptionally, this is going to benefit her only, while she is trying to conceive. So these are actually important tests, and rubella is actually very important. Every woman should get it done. Right. And apart from these tests, should they do genetic screening also? Like family history है या नहीं है, उस पर डिटरमाइन करेगा कुछ डिजीजेस के लिए जेनेटिक स्क्रीन, या फिर करानी चाहिए इन जनरल, या फिर कुछ ऐसी जेनेटिक स्क्रीन है जो तो सबको ही करानी है अगर आफ्टर 30 दे आर कंसीविंग? See, whether a couple is over 30 or less than 30, there's one test जो हमें कराना है, वो है थैलेसीमिया ट्रेट स्क्रीनिंग, है ना. ये हमें क्यों कराना है? दिस ऑल्सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर द मदर एंड द फादर आर थैलेसीमिया कैरियर्स तो बच्चे में बहुत ज्यादा चांस है थैलेसीमिया मेजर होने का, बहुत चांसेस होते हैं. इट इज अ सीरियस लाइफ लॉन्ग ब्लड डिसऑर्डर, है ना. बच्चे को रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन थ्रू आउट द लाइफ चाहिए होगा. तो ये हम इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें पहले से पता है कि मदर एंड फादर कैरियर्स है, तो या तो अगर वो प्रेग्नेंट हो गई है तो हम CVS या एमनियोसेंटेसिस करा के फीटस का स्टेटस देख सकते हैं. और अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो बहुत माइंडफुल पेशेंट है, बहुत ही ज्यादा शी इज वेरी थिंकिंग अ लॉट दैट शी हैज टू हैव अ हेल्दी बेबी एंड नॉट बी सफरिंग फ्रॉम दिस, शी कैन गो डायरेक्टली फॉर IVF विद री-इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस. सो दिस इज वन टेस्ट व्हिच एवरी पेशेंट, एवरी कपल शुड बी डूइंग. एंड अदर कुछ टेस्ट जैसे ओवर 30 है अगर कोई कपल एंड फैमिली हिस्ट्री कोई पॉजिटिव है फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, देन टारगेटेड जेनेटिक स्क्रीनिंग शुड बी स्ट्रांगली एडवाइज्ड, जिसमें कुछ आता है जैसे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, SMA है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जो जीन म्यूटेशन होती है, वो चेक करते हैं. इसमें रेगुलरली हम हर पेशेंट में नहीं कराते, बट अगर किसी फैमिली हिस्ट्री है या फिर कोई ऐसा सिबलिंग है जिसको ये है, देन वी डू इट, है ना. बट आप कैरियोटाइपिंग करा सकते हो, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज अगर किसी पेशेंट को रेकरेंट मिसकैरेज हो रहा है या फिर प्राइमरी इनफर्टिलिटी है तो आप कैरियोटाइपिंग करा सकते हो. और आई वुड से इंडिया में बहुत कंसैंग्यूनियस मैरिज, जो कजन मैरिज बहुत प्रेवलेंट है ना. तो कुछ कल्चर्स में इट इज वेरी कॉमन कि कजन मैरिज हो जाती है. तो इन सब कपल्स में तो 100% उन्हें टारगेटेड जेनेटिक स्क्रीनिंग करानी चाहिए, जिसमें वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, टे सैक्स डिजीज हो गया, तो ये सब चीज को वो लोग रूल आउट कर सकते हैं फीटस में, है ना. So these are a few genetic screening tests which can be done. Some are mandatory, some are according to the situation.
So yeah, you should Hmm. consult your gynecologist, what you should be doing actually in the preconceptional checkup. Yes, rightly Hmm? said. Hmm? Apart from like these tests in the women, पार्टनर के सीमेन एनालिसिस के अलावा, जैसे आपने बोला कि पार्टनर का भी सीमेन एनालिसिस अगर कोई कराना चाहता है प्री कंसेप्शन की, हाँ कुछ इशू नहीं होगा उसी को रूल आउट करने के लिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पार्टनर के भी कुछ और टेस्ट करवाने नेसेसरी या फिर ओनली सीमेन एनालिसिस दे कैन डू इफ दे वांट? सी पार्टनर, जैसे एक फीमेल पार्टनर कंट्रीब्यूट करती है 50% इन द प्रेगनेंसी, मेल पार्टनर इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग 50% ऑफ द जेनेटिक मटेरियल टू द फीटस. तो अगर मेल पार्टनर में भी कोई हेल्थ इश्यूज है या फिर कोई लाइफस्टाइल डिसीज है, उसका स्पर्म इम्पैक्ट होगा जिसकी वजह से जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं फीटस में. ऑल्सो अब रिसेंट स्टडीज आई है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन हो रहा है, जो भी होता है उसमें मोस्ट कॉमनली ये देखा जा रहा है कि स्पर्म इज द मोस्ट कॉमन कॉज. The defective sperm is causing this recurrent ओह, miscarriages in the first trimester. So semen analysis तो हम कर ओके, ही सकते हैं. वो एक बहुत बेसिक टेस्ट है जो हम हर पेशेंट में करा सकते हैं. उसमें हमें ये पता चल हाँ. सकता है काउंट कैसा है, मोर्फोलॉजी कैसी है, मोटिलिटी कैसी है. बट यस, देर आर अ फ्यू टेस्ट लाइक, अगर हम उनका थायराइड प्रोफाइल करा सकते हैं, एफएसएच करा सकते हैं, विटामिन डी एस्टिमेशन करा सकते हैं. ऑल्सो एक टेस्ट होता है जो स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट होता है, जो ये हम इसमें कराते हैं. जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है, सब कुछ कर लिया हमने, सब ट्राई कर लिया, सारे रिपोर्ट्स हमारे नॉर्मल है, फिर भी हमें कंसेप्शन नहीं आ रही, तो हम तब भी ये टेस्ट कराते हैं. या फिर बहुत सारा रेकरेंट मिसकैरेजेस का हिस्ट्री है पेशेंट को, लेकिन फीमेल पार्टनर में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, सीमेन एनालिसिस भी नॉर्मल आ रही है, तब ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन जो इंडेक्स हम चेक करते हैं. तो दीज आर अ फ्यू टेस्ट. बेसिक टेस्ट मेल के लिए सीमेन एनालिसिस ही होता है, बट इन केस we see कि नहीं semen analysis normal आ रहा है, then we go ahead with these many other tests which we can do. Yeah. Mm-hmm. It was very good information. The last part, the semen DNA fragment test, because Yeah. I was also not aware of Yeah. about it कि हाँ अगर unexplained infertility Infertility. है किसी कपल को, तो they should go for this. Yes, right. Check that okay मतलब is there anything they can do about it. All right, Yeah. so हमने टेस्ट की बात की. Now we come to the how to prepare their body. So अभी का जो हमारा sedentary lifestyle है उसमें overweight या फिर ओबेसिटी बहुत ही कॉमन है विमेन में, एंड उसकी वजह से या फिर वाइस वर्सा पीसीओएस, इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ही कॉमन है दीज डेज, एंड दैट इज आई थिंक यू कैन टेल मी कि बहुत मोस्ट कॉमन रीजन होता है इनफर्टिलिटी का. सम कपल आर सफरिंग इनफर्टिलिटी इशू से. सो कैसे मतलब फिजिकली दे शुड प्रिपेयर, वेदर दे आर अंडर वेट और ओवर वेट और ओबीज, कैसे उनको खुद को प्रिपेयर करना चाहिए वुमेन को अपने आप को बिफोर कंसेप्शन, सो दे कैन हैव अ हेल्दी प्रेगनेंसी. ओके, सो फर्स्ट जैसे आपने बोला, ओवरवेट एंड अंडरवेट दोनों ही एक्सट्रीम्स आर वेरी बैड फॉर फर्टिलिटी, है ना. बोथ डू नॉट हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन फर्टिलिटी. So achieving an optimum BMI is very important if you are planning to conceive. जो BMI हमारी 18.5 से 24.9 तक नॉर्मल BMI होती है, इससे नीचे भी खराब है, इससे ऊपर भी खराब है. Because you know when you're obese or you're overweight, आपके chances of irregular ovulation और anovulation बहुत common हो जाती है. PCOS भी बहुत common होता है ना. And जब आप अगर conceive भी कर जाते हो, तो since you're overweight, आपको pregnancy में भी complications बहुत हो जाती हैं, राइट. एंड सेकेंड आप अगर अंडरवेट है, तो अंडरवेट भी अगर है तो दिस ऑल्सो इंटरफियर्स विद द ओव्यूलेशन. एंड अगर आप प्रेग्नेंट हो भी जाती हैं, तो वो भी इफेक्ट करता है फीटस का ग्रोथ इन प्रेगनेंसी. सो बोथ एक्सट्रीम्स आर एक्चुअली बैड. यू शुड एक्चुअली वर्क ऑन ईदर डाइट एंड एक्सरसाइज. दोनों आपको जरूरत है टू लूज an amount of weight, or to gain some weight. So you should actually, if you are worried about your weight, whether you're underweight or overweight, you should speak to a nutritionist. You should yoga karo, exercise karo, जो भी करो, but you have to have that optimum BMI range. ये बहुत important है. Second is nutritional deficiency. बहुत ज्यादा common है. लोगों को लगती है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से कुछ होता नहीं है, बट लेट मी टेल यू, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जो होती है, वो एग की क्वालिटी को बहुत कम करती है, ना आपकी ओव्यूलेशन के साथ भी इंटरफेयर करती है. तो आयरन हो गया, फॉलिक एसिड हो
गई, विटामिन डी हो गया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग योर फर्टिलिटी। आपको ओमेगा 3 भी बहुत ज्यादा है, सो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इज अ कॉज, एंड यू शुड एक्चुअली बी वेरी माइंडफुल अबाउट व्हाट यू आर पुटिंग इनसाइड योर बॉडी। थर्ड इज लाइफस्टाइल चेंजेस भी आजकल इतनी ज्यादा कॉमन हो गई है, अल्कोहल, स्मोकिंग, this has to stop because this impacts your fertility in a very bad way. And second is also sleep. लोग importance नहीं देते हैं sleep को, but poor sleep also can uh, decrease your chances of conception. And one very important factor is stress, जो आजकल I think सब में है। Stress, you need to reduce your stress, take control of your stress, because stress, जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा उतना कम चांसेस ऑफ कंसेप्शन होगा। सो दीज आर few ways how you can prepare your body for conception physically. All right. Yes. Apart from that, are there any fertility friendly diet which you can tell that they should include? Of course, you told that vitamin, protein rich, omega rich diet. If you can briefly tell about that also, and apart with that, exercise में क्या क्या उनको करना चाहिए basically if somebody is trying to conceive. Okay. So, see, there was this very common fertility diet going on on the internet. This was inspired by the Harvard fertility study. So, उसमें ये लिखा था, number one was whole grains over refined carbs. ये तो हमें भी पता है that whole grains are more beneficial than refined carbs, तो हमें avoid ही करने चाहिए for anyone. Second is plant based या lean meat protein. है ना, जैसे आपका चिकपी हो गया, लेंटिल हो गई, टोफू हो गया, एंड देन चिकन हो गया, फिश हो गया। सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच यू शुड इंक्लूड। सेकंड इज डेयरी इन मॉडरेशन, है ना, कर्ड, पनीर हो गया, दही हो गया, ये सब बहुत बेनिफिशियल है इन मॉडरेशन अगेन। देन हेल्दी फैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक एवोकाडो हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया। देन ओमेगा 3 जो रिच फूड्स होते हैं, वॉलनट्स हो गया, फ्लैक्सीड हो गया, चिया सीड्स हो गए। Then also they have mentioned that antioxidant जो rich foods होते हैं, वो जैसे बेरीज होगी, स्ट्रॉबेरी होगी, ब्लूबेरी होगी, ये सारे जो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स जो होते हैं, वो हमारी जो एग क्वालिटी और रिप्रोडक्टिव जो टिश्यूज है, वो विद टाइम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंडर आती हैं। तो जो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स है वो उसको प्रिवेंट करती है, तो इन टर्न इट ऑल्सो बूस्ट योर फर्टिलिटी। सो यू शुड इंक्लूड दीज बेरीज इन योर डाइट, है ना। डार्क ग्रीन्स आपके लेने हैं, आपको मेथी, स्पिनच, ब्रोकली हो गया, है ना। देन टमेटोज हो गया, बेल पेपर्स हो गया, सिट्रस फ्रूट्स बहुत बेनिफिशियल है। देन आयरन रिच फूड्स में आप ऐड कर सकते हैं, डेट्स हो गई, बीट रूट हो गई, है ना। ओमेगा 3 मैंने बता दिया, वॉलनट्स है, फ्लैक्स सीड्स है। देन व्हाट यू शुड नॉट बी टेकिंग व्हाइल यू आर ट्राइंग टू कंसीव, समथिंग लाइक sugary foods, sugary beverages you should avoid, artificial sweeteners you should avoid, highly processed food, junk food you should avoid, है ना। देन caffeine is very important, you should limit your caffeine intake, 200 milligram recommendation है, which means around 1 to 2 cups per day आप ले सकते हो, even when you are trying to conceive, and you have conceived also 1 to 2 cups is completely safe. Avoid alcohol, smoking. These are few of the dietary modifications you can make which actually helps with conception. Right. So with the balanced diet, do they need to take supplement pre-conception? Like, as I know as a pediatrician, and I also took folic acid for first 3 months before conception, because I know that folic acid is essential for the baby's development, brain development during the pregnancy. So what are the supplements they should start, and कितने पहले उनको start कर देना चाहिए if they are planning for the pregnancy? सी, जो हमारे प्रैक्टिस में हम करते हैं, इफ समवन इज प्लानिंग टू कंसीव, हम उन्हें फॉलिक एसिड सप्लीमेंट एक देते हैं, बिकॉज majority women are deficient, folic acid deficient, and folic acid is very important in the first trimester. Why? Because neural tube defects जो होते हैं वो folic acid deficiency से होते हैं। बेबी में अगर कोई brain development में जो भी defects होते हैं, it's because of the folic acid deficiency. Also, folic acid plus DHA is a good combination, because DHA is also considered to be very good for intellect development, brain development. So if you can take folic acid plus DHA, that's very good, and ideally you should take 3 months preconceptionally. And if you have skipped taking, or you have conceived bina plan ke first time, then also since the day you find out you're pregnant, you should start taking folic acid, है ना। But apart from this,
आयरन कैल्शियम जो भी है, आइडियली वी डू नॉट एडवाइज इट टू ऑल द पेशेंट्स। अगर किसी में डेफिशिएंट है Okay. तो हम उसे आयरन कैल्शियम ये प्री कंसेप्शनली देंगे, अदरवाइज हम जरूरत नहीं है। आई वुड रियली सजेस्ट एवरीवन टू फोकस मोर ऑन द न्यूट्रिशियस फूड्स, जो फूड से ओमेगा 3 एंड आयरन एंड फॉलिक एसिड, ये सारे जो फ्रूट रिच फूड्स हैं वो सब आप इंक्लूड करो अपने डाइट में, एंड फॉलिक एसिड एंड डीएचए सप्लीमेंट्स लो। ऑल्सो आई मिस्ड द एक्सरसाइज पार्ट। Again, exercise is very important because you need to have achieve that optimum weight while you're trying to conceive. Some exercises like yoga you can do which increase the blood flow to your pelvic area. This also helps. जैसे कोई poses है, cobra pose है, child pose है, butterfly pose है, ये सारे poses actually increases the blood flow to the pelvic area and it's quite beneficial. बाकी brisk walking is very important. वो भी बहुत अच्छा exercise है to lose weight. Swimming कर सकते हैं, pilates कर सकते हैं, core strengthening exercises कर सकते हैं. What you should avoid is, I would say, बहुत ज्यादा heavy weight lifting without any guidance, या फिर कोई high intensity interval training आप कर रहे हो without any guidance, है ना, या आप बहुत ज्यादा aggressively अपने आप को push कर रहे हो. You don't really need to do that. And one thing is hot baths और जो saunas होते हैं you should avoid while you're trying to conceive also, and even if you have conceived, if you're pregnant, you should avoid these hot baths and sauna. Okay, all right. So I know मतलब women try and बहुत कई बार होता है कि within 1 month 2 months they conceive, and कई बार होता है कि 6 months लग जाते हैं, 1 year लग जाते हैं, 2 year लग जाते हैं कुछ को, and they get negative feelings about कि हाँ मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं कंसीव नहीं कर पाऊंगी, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, सब कुछ टेस्ट तो करा लिया, सब कुछ तो नॉर्मल है. सो व्हाट आर योर पॉजिटिव थॉट्स ऑन दैट हाउ दे शुड कीप देमसेल्व्स पॉजिटिव कि हाँ नहीं मतलब सब कुछ अगर नॉर्मल है तो इट विल इवेंचुअली हैपन. सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि ये जो जर्नी होती है ना प्रेगनेंसी कंसीव करने की, इट्स वेरी डीपली इमोशनल फॉर द कपल, है ना, एंड उनके बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं. पीपल डोंट अंडरस्टैंड, देयर इज अ लॉट ऑफ मिथ आल्सो सर्कुलेटिंग, जो लोगों को लगता है कि अरे हमने फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ ट्राई किया एंड नहीं हुआ तो देयर सम प्रॉब्लम, स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है, बहुत सेल्फ डाउट के अंदर आ जाते हैं, सेल्फ डाउट स्टार्ट्स क्रीपिंग इन. सो पीपल रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप एक डॉक्टर के पास भी जाओगे, आप मेरे पास भी आओगे, तो मैं आपको, अगर आपकी एज लेस देन 35 है तो मैं आपको बोलूंगी भाई एक साल ट्राई करो स्पॉन्टेनियसली, नॉट इवन एक साल, तो आप 6 महीना तो कम से कम स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन का ट्राई करो, सिंस ऑल योर रिपोर्ट्स आर आल्सो नॉर्मल, है ना. तो एंड अगर आपकी एज मोर देन 35 है तो चलो फिर तो 6 मंथ्स ही बोलेंगे, आप चलो 3 मंथ्स बोल देंगे इन प्रैक्टिस अगर द पेशेंट इज वेरी एप्रीहेंसिव. सो द डॉक्टर इज आल्सो गिविंग यू दैट टाइम फ्रेम, है ना, कि इतना दिन आप ट्राई करो. तो आप इतना ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस मत लगाओ. यू नीड टू एक्चुअली गिव योर बॉडी योरसेल्फ दैट, यू नीड टू सेट दैट रियलिस्टिक टाइम फ्रेम कि मैं इतना टाइम 6 months मुझे डॉक्टर ने बोला है, मैं 6 months, यू ट्राई इट रिलीजियसली. एक्चुअली बहुत स्ट्रेस मत लो, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चांसेस ऑफ कंसेप्शन. ये बहुत ही मेजर फैक्टर है कपल्स के बीच में. लोगों को ये लगता है कि स्ट्रेस नहीं ले रही मैं, बट आप जब बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचते हो, आप इनडायरेक्टली योर डिसबैलेंसिंग ऑल योर हॉर्मोन्स, एंडोजेनस हॉर्मोन्स, व्हिच विल नॉट ऑल्सो बी सीन इन द रिपोर्ट्स, है ना. आपको लगेगा सब नॉर्मल है, बट वो स्ट्रेस जो आपको अंदर से आपके हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस कर रहा है, you don't know how it's negatively impacting your chances of conception. So, और second, I would tell to all the couples कि आप जब वो 6 months का आपने जो time frame अपने लिए choose किया है, and आप उसमें religiously try कर रहे हो, it might sound contradictory to a lot of patients and doctors also, but I would say please do not track your ovulation with ovulation kits, fertility apps, इनसे दूर रहो, है ना. बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि आप ये कर रहे हो तो बहुत सही कर रहे हो, बट आप सही नहीं कर रहे हो. क्यों? क्योंकि आप रेगुलरली जो आप चेक करते रहते हो ना, यू आर फीडिंग स्ट्रेस इनटू योर सिस्टम, एंड दैट स्ट्रेस इज नॉट लेटिंग यू गेट प्रेग्नेंट. ठीक है, तो मैं हर पेशेंट को जो मेरे पास आता है ना, मैं ये बात हमेशा कहती हूँ, वो कहीं से सुन के आता है, वो ओव्यूलेशन किट आजकल इंस्टाग्राम पे भी बहुत कॉमन हो गया है ना, लोग ओव्यूलेशन किट डॉक्टर्स भी दिखाते हैं कि आप चेक करो, लेकिन इट इज नेगेटिवली इम्पैक्टिंग देयर सिस्टम. So if you have set a time frame for yourself कि इतना टाइम मुझे ट्राई करना है, तो उसमें ये सब मत करो. फर्टिलिटी ऐप मत चेक करो, आप ओव्यूलेशन किट्स मत चेक करो,
है ना, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, एंड आप स्ट्रेस फ्री होके वो टाइम फ्रेम में आप ट्राई करो। एंड हम्म या अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रही है, आई वुड से प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, जर्नलिंग कर लो, मेडिटेशन कर लो, कम्युनिकेट करो हम्म अपने पार्टनर के साथ, फैमिली फ्रेंड्स जिनके आप हम्म के ऊपर आप ट्रस्ट कर हम्म सकते हो। एंड यस, डोंट गेट वेरी हम्म ऑब्सेस्ड एंड टेक सम टाइम, गिव योरसेल्फ आल्सो सम टाइम, इट विल हैपन। एंड अगर हम्म इवन आफ्टर ट्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम भी नहीं हो पा रहा, देयर इज हेल्प आउटसाइड, you can हम्म easily take help, so do not worry about it, and when you the time you have given to yourself, उसको easily बहुत stress free होके just enjoy करो and give yourself that time, I would say these are the few steps I would want all women to know, क्योंकि ये बहुत ज्यादा common है, ये जो 1-2 months आई try नो आई करने के नो बाद बहुत आते हैं, बहुत एंड उसके बाद दिल से कि मैम हमने सब कुछ किया, हमने उस टाइम में भी रहा। आपको ये समझना होगा कि बहुत सारे ब्लॉक्स, पजल है ये, एंड सारी बॉक्सेस को टिक हम्म करना होगा, उसके बाद जाके कंसेप्शन आती है। आपकी फर्टाइल विंडो, पूरा साइकिल आपका फर्टाइल नहीं है, तो आपको ये चीजें समझनी है। हम्म बहुत सारी चीजें, सब चीज when जब अलाइन होती है तब होती है। देर आर फ्यू हाँ पेशेंट जो हाँ बहुत क्विकली वन साइकिल में कंसीव कर जाते हैं, कुछ को 3 लगता है, कुछ को हम्म 6 लगता है, कुछ को कुछ हेल्प लगता है। सो यू नीड टू हम्म वेट एंड गिव योर सेल्फ दैट टाइम, आई वुड से। हम्म नहीं नहीं यू राइटली सेड कि अगर लाइक वो 1 मंथ है उसमें 7 to 10 days का ही एक फर्टाइल पीरियड है एंड उसमें ठीक है लोग ट्राई कर रहे हैं बट कई बार उनका एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाता है जब इस माइंड सेट से दे दे थिंक ना कि हाँ वे अभी हमें कंसीव करना है प्रेग्नेंट होना है तो उनका एक्सपेक्टेशंस बहुत ही हाई हो जाते ज्यादा हैं बढ़ वो जाता है। मतलब लाइक 25 days के बाद ही दे स्टार्ट चेकिंग मल्टीपल मैनी टाइम्स कि हाँ मैं हाँ, ये मेरे प्रेग्नेंट साथ तो इतना प्रेगनेंसी के कॉमन होता है, टेस्ट का लेती हूँ इतना टेस्ट का कॉमन लेती हूँ आता है। ये हाँ मेरे लिए बहुत कॉमन है, लाइक उनका एक्सपेक्टेड, आई स्ट्रिक्टली टेल ऑल माय पेशेंट्स कि आप अपने एक्सपेक्टेड डेट ऑफ मेंसेस से पहले आप चेक भी मत करो, लेकिन कुछ होंगे उसमें से जो चेक हाँ करेंगे। एंड फिर वो कभी कभी ऐसा होता है, हाँ पीपल डोंट नो कि आप जब बहुत जल्दी ट्राई करते हो तो कभी कभी बीटा HCG बढ़ जाता है, तो वो पॉजिटिव आ जाता है, एंड देन वो कोई हो सकता है बायोकेमिकल प्रेगनेंसी हुई हो, एंड फिर वो पेशेंट अपने ऊपर एड ऑन करता है स्ट्रेस, जो कि जरूरत है नहीं उसे। सो यस या, सो दिस यस शुड बी अवॉइडेड। एंड यस कई बार ना स्ट्रेस की वजह से एज यू नो कि वो जो मेंसेस डेट है वो आगे भी बढ़ जाती है एंड देन पीपल लाइक विमेन बिकम होपफुल कि हाँ अब तो हो हाँ, ही तो गया होगा एंड देन प्रेगनेंसी आ प्रेगनेंसी गई। कम ये नेगेटिव बहुत एंड देन वो कॉमन है। फिर दे फील स्ट्रेस्ड हाँ बहुत कॉमन है एक्चुअली बिकॉज वो स्ट्रेस लेती रहेंगी पूरे मंथ में एंड देन वो लाइक 30 days का साइकिल है तो 35 days हो जाएगा एंड देन वो आएगा नहीं पॉजिटिव देन दे कीप आस्किंग यू रिपीटेडली कि हाँ मेरा तो मिस हो गया फिर क्यों नहीं आ रहा बट दे डोंट नो कि अंदर दे आर गिविंग सो मच स्ट्रेस ट्रू, जिसकी वजह से ये ये बहुत प्रॉब्लम हो ज्यादा रही है राइट इम्पोर्टेंट है, एंड पीपल शुड नो अबाउट दिस। मोस्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द वुमेन डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग टू देमसेल्फ। सो या, ये बहुत जरूरी है टू माइंड बहुत फ्री करके, स्ट्रेस फ्री करके आप कंसीव करने का प्लान करो। उसको इतना मैकेनिकल मत बना दो, इमोशनली रहने दो, है ना। Yes, yes. So thank you so much, Dr. Chandni. This was very helpful session, informative session, and I really enjoyed having you and discussing pregnancy after 30 because मैंने भी अपने दोनों बच्चे आफ्टर 30 ही कंसीव किए हैं एंड जो आपने चीज़ें बताई सेम आई डिड फॉर माई सेल्फ एंड सारा जो टेस्ट वगैरह है वो सारा करवाया हमने एंड इट वाज लाइक प्लान्ड एंड अगर आप प्लान करते हो अच्छे से विथ योर गायनेक हेल्प यू विल नॉट बी इन स्ट्रेस सो व्हाट आर राइट। योर लाइक we already discussed about the takeaway message but what are 3 most important message जो आप देना चाहते हो हमारे listeners को जो women सुन रही हैं और they are after 30 and they are planning to conceive See, embarking on this motherhood journey after 30, I would say it's a beautiful and an empowering decision. है ना, एज अ गायनेक 3 pieces of advice if you ask me, मैं क्या बोलूंगी? So number 1 would be you should get yourself a comprehensive preconceptional checkup by a gynaec. है ना, take your hmm. folic acid with DHA supplements 3 months preconceptionally. And second is get to know about your fertile window. If your periods Hmm. are irregular, you should consult a gynecologist to work on that. And if your periods are regular, you should discuss this fertility window with your gynaec. Do not go for Hmm. this fertility apps and everything pehle.
पहले just Hmm. speak to your gynec and know Hmm. about your fertile window. है ना, you need to Hmm. discuss this with your gynec, and once you know about it, have regular timed intercourse during that period. If you do not conceive within that time frame, get help. And if you're above 35, I would say do not wait for too long. है ना? Hmm. And Hmm. third, I would say that along with your physical health, you should be mindful about your mental and emotional well-being also. And Hmm. it's, as a gynec, I would say age is a very, very important aspect for female fertility. But इसका मतलब Hmm. ये नहीं है that you will let age define your journey as well. So Hmm. Hmm. biologically, if you plan it well with the help of your gynec, it's not going to be as stressful as you think. Uh, Hmm. when you get pregnant, I would really advise all the women to get all the markers done so that Hmm. we can rule out any chromosomal abnormality, since we are Hmm. on in that advancing age thing. So Hmm. we should be prepared that क्रोमोसोमल abnormalities हो सकती हैं, तो उसे हमें रूल Hmm. आउट करने के लिए वो टेस्ट कराने हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड जो बहुत Hmm. मैंडेटरी है और Hmm. प्रेगनेंसी में मिस नहीं होने चाहिए. Should discuss with your treating gynec and you should not miss those. So yeah, Hmm. these are Hmm. a few pieces of advice I would give to all the women who are listening to this podcast today. So yeah. Thank you so much, Dr. Chandni. It was really wonderful, informative, incredibly informative session. So Yeah, I would thank you, share Dr. few Smita. like line from my journey. So yes, I did plan after 30, both the kids, and I did take help from my gynec. What are the pre-medical? Even being a doctor, I talked to the gynecologist and did all my medical pre-conception tests. I took folic acid, DHA, omega 3 before conception, and Yeah. during the pregnancy also, as you rightly said, कि जो क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज के सारे टेस्ट है Yes. 12-13 वीक्स पे सेकेंड लेवल सारा सारा करवाया हमने. एंड एक फनी स्टोरी है कि वन टेस्ट आई थिंक आई फॉरगॉट द नेम, जो जेनेटिक टेस्टिंग होता है आई थिंक NIPS? 19-20 वीक्स पे होता है. हाँ हाँ हाँ. सो दैट वी फॉरगॉट सम हाउ इट इज स्किप फ्रॉम माई माइंड ऑल्सो एंड गायनेक माइंड ऑल्सो. सो मैम ने लिख दिया था मुझे बट आई कुड नॉट गेट इट डन. देन my gynec scolded me. Was my senior of course from my college कि हाँ Normal. कैसे मिस कर सकती हो आप ये वो, मतलब ये तो बहुत जरूरी है. एंड देन आई थिंक because all was well, ऐसा कुछ नहीं था which was indicating towards the any syndrome or any kind of, but she was like नहीं करवाना था ये ना. and now you have to get it done to prepare yourself mentally, because वो होता है ना कि आप इवन कुछ होता भी है तो भी पेरेंट्स को सडनली नहीं पता चलना चाहिए आफ्टर बर्थ. दे True. हैव टू प्रिपेयर देमसेल्व्स. So that is my takeaway message for all the women, that follow your gynec advice about every investigation जो before pregnancy है, पोस्ट प्रेगनेंसी भी है, वो आपको सब टाइमली करानी है. यू शुड नॉट स्किप, बिकॉज Yeah. मैं एज ए पीडियाट्रिशियन आई नो कि कितने सारे अगर कोई सिंड्रोम होता है, कोई क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी होती है, इट जस्ट नॉट द चाइल्ड who is No, the affected, it's parents the are also parent suffering. also. हाँ, if the parents will also suffer, because whole life will change upside down. सो True. वो है, मतलब वो उसी को प्रिवेंट करने के लिए इतने सारे टेस्ट, इतने सारे एडवांस टेस्ट अभी आ चुके हैं जो बिफोर 20 वीक्स ही हम लोग चेक कर सकते हैं, एंड वी कैन हाँ, बिल्कुल. डायग्नोज देम. हाँ, और अभी तो आई थिंक एमटीपी का वीक्स भी बढ़ा 24 दिया. वीक्स हो गया. हाँ. हाँ, हाँ. 24 वीक्स हो गया. सो ऐसे नहीं है कि आपको 4 वीक्स का और विंडो मिल रहा है जिसमें आप चेक करा सकते हो. एंड देन क्रोमोजोमल एनी एबनॉर्मलिटी, स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी, क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी जो आप पता करवा सकते हो, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन टेक डिसीजन. All right. So Yeah, thank you yeah. so much, Dr. Chandni. It was so. Thank you, Dr. Smita. I'm so happy to have you I am so have happy, you. to speak to you. It was I a lovely enjoyed. conversation. I also enjoyed a lot talking to Yes, you. yes.